شکر اللہ کا ہی۔ آج ہمارے پاس مہمان ہیں جی ایم پی انسپائر ٹی وی پر نصیر اللہ طاہر صاحب۔ سب سے پہلے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا، ٹائم دیا، اور آج ان سے بہت ساری باتیں کریں گے۔ اور جہاں تک مجھے پتہ ہے ان کے نام کا تو نصیر اللہ طاہر صاحب نام ہے ان کا، اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈاہنا والا میں یہ آج کل پڑھا رہے ہیں۔ اور باقی کچھ تو آپ ہم ان سے خود پوچھیں گے کہ یہ کب کس پوسٹ پہ پڑھا رہے ہیں آج کل میں ایس ایس سی سائنس پہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈاہنا والا میں پڑھا رہا ہوں۔ میری فرسٹ اپائنٹمنٹ ایز اے انگلش ٹیچر ہوئی تھی۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، نصیر اللہ صاحب کے والد صاحب برکت اللہ صاحب بہت سارے لوگ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور میں نے بھی ان کو دیکھا ہوا ہے۔ میں ان کا اسٹوڈنٹ تو نہیں رہا، لیکن جب میں یہاں پہ ایف ایس سی کرتا تھا اس وقت وہ یہاں پڑھایا کرتے تھے۔ بہت ہی نائس پرسن تھے، تو بڑے ایماندار آدمی تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کسی نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے پینشن کے حوالے سے ایک دفعہ کہا تھا کہ پینشن کا جو کیس ہے میں نے وہ ایسے ہی کروانا ہے، اور کوئی اس کے اندر کرپشن رشوت وغیرہ کسی قسم کی نہیں دی جائے گی۔ مجھے 1 روپیہ نہیں، کیوں جی؟ واقعی انہوں نے ایسا کیا۔ تو جو ان کے کولیگز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بابا جی آپ نے ساری ضائع کر لینی ہے۔ ہاں جی۔ انہوں نے کہا جی میں نے 1 روپے خزانے کو نہیں دینا، نہیں دیا۔ خزانے والوں کو پرانا بقایا نکال دیا کہ آپ کو 30,000 روپے زیادہ آئے ہیں۔ وہ دوست کہنے لگے یار 30,000 آپ ان کو دے دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو اگر میرے پاس زیادہ آئے ہیں تو وہ لے لو۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ نے ضائع کر دیں گے۔ تو ابا جی فرق کہنے لگے کہ بھئی اگر میرے مقدر میں نہ ہوئی نا تو جب مجھے مل گئی پھر بھی ضائع ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اور تمام کیس انہوں نے بغیر پیسے دے دیا۔ نصیر اللہ صاحب، تھوڑے سے آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پوچھوں گا کہ آپ نے اپنا سٹارٹ کیریئر ایجوکیشن کا کہاں سے شروع کیا؟ کون سا وہ اسکول تھا جہاں سے آپ نے پرائمری کی ایجوکیشن حاصل کی، پھر تھوڑا سا ایلیمنٹری ایجوکیشن، تھوڑا سا کیریئر کے حوالے سے بتا سر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایس سی اسٹیٹسٹک کی ہے، پنجاب یونیورسٹی۔ اس وقت پنجاب بینک میں میری ایز اے گریڈ 3rd آفیسر اپائنٹمنٹ ہو گئی تھی جب میں ایم ایس سی کے دوسرے سال میں تھا۔ صحیح 93 کی بات ہے۔ لیکن میرے ابا ہی کہنے لگے کہ نہیں میں نے بینک کی ملازمت نہیں کروانی۔ صحیح وہ میں نے چھوڑی۔ پھر میری ایم ایس سی کا بھی رزلٹ آیا ہی تھا تو میری ایز اے انگلش ٹیچر گورنمنٹ پرائمری اسکول 168 مراد میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی۔ صحیح وہاں پہ جب میں انگلش ٹیچر اپائنٹ ہوا نا سر، تو انگلش 3ری کلاس میں پہنچ چکی تھی۔ صحیح لیکن 3ری کلاس کے بچے بیسک الفابیٹ بھی نہیں، میں بہت دماغ پاتا تھا، میں بڑا مشنری تھا کہ والد صاحب بھی ٹیچر تھے۔ تو میں نے پھر نا ان کو اردو میں انگلش کے یعنی کہ جو تھے نا وہ بتائے، انگلش اردو میں بورڈ پہ لکھ کے دیتا۔ لیکن پھر میں نے فیل کیا کہ بچے ایسے سیکھ رہے ہیں۔ پھر میں نے یہ سب سے پہلے یہ بک میں نے لکھی تھی 7 تلفظ اردو میں لکھنے کا، اور 97 میں میری بک یہ مارکیٹ میں آئی۔ اس سے پہلے یہ سر کی میں ایک بک دکھاتا چلوں، تھوڑا سا زوم کر کے یہاں پر کیمرے کے سامنے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ نصیر اللہ صاحب ایک بک کے رائٹر بھی ہیں۔ یہ بڑی بات ہے ڈاہنا والا کے اندر۔ ہم نے پہلے سنا تھا شفیق بیدم کی ایک کتاب تھی، تو اس کے بعد یہ دوسری انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو ماشاءاللہ بڑی بات ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد 97 کے بعد میٹرک تک جو خلاصے آئے نا ان کے ساتھ بھی پھر وہ اردو میں تلفظ لکھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے مثالیں میں یہ پہلی تخلیق میری ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر میں انگلش یہ بہترین ان کے بچوں نے اس میں رزلٹ دیا۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر میں ڈی ٹی بن گیا 167۔ یہ ڈی ای ٹی جو آپ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ڈی ای ٹی یہ آپ ٹریننگ انسٹرکٹر آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی صحیح ہے۔ تو تھوڑا سا بتائیں گے کہ ٹریننگ انسٹرکٹر جو تھے ان کا کیا رول تھا اس ایجوکیشن کے اندر؟ ویسے یہ پروگرام بہت اچھا تھا گورنمنٹ کا۔ صحیح۔ اس میں یہ تھا کہ ہماری ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ ہم سکولز میں جاتے تھے، چاہے وہ پرائمری سے ہو، چاہے وہ پرائمری اسکول ہے، مڈل ہے، ہائی ہے، چاہے ہائر ہے۔ ٹیچر کو پہلے پڑھا کے دکھاتے تھے کہ کیسے پڑھانا ہے۔ ٹیچر کا پھر لیسن لیتے تھے۔ اگر ٹیچر کو کہہ دے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے خود پڑھا دیں، ہم پہلے انہیں ماڈل لیسن دیتے تھے کہ ہم نے ایسے پڑھانا ہے، ایسے لوگوں کو مد نظر رکھنا ہے۔
फिर वो पढ़ाते थे। मैं तो टीचर सिखाया जाता है कि हमें SLO को मदद रखे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कंसेप्ट क्या है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, वो वाइंड अप हो गया। मेरे ख्याल में पढ़ाना और सिखाना, कुछ डाला वाला में एक बैनर लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा था कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए टीचर को? सिखाना चाहिए। यानी पढ़ाने को तो सारे पढ़ाते हैं, लेकिन कोई आपकी जिंदगी में कोई सर वो जो प्रोग्राम था ना ये सिस्टम, उसमें एक पॉइंट था कि SLO, सही, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, यानी ये रट्टा नहीं लगाना ये सबक पढ़ा दिया, उसके ऊपर एक SLO लिखा होता कि इस पढ़ाने का मकसद क्या है। हाँ जी, हमने वो अचीव करना होता था। हमारी ड्यूटी ये होती थी कि टीचर को स्टेज पे लेके आए कि टीचर वो SLO अचीव करे। यानी इसका मतलब पढ़ाते तो रहे जी जी। लेकिन अगर उसकी अचीवमेंट या गोल्स ही नहीं है उस बंदे के, हाँ। या कोई चीज नहीं है, टारगेट नहीं है, तो उसका पढ़ाने का फायदा ही नहीं है। रट्टा, हाँ, रट्टा ही है। लॉन्ग टाइम मतलब एजुकेशन नहीं। फिर जब मैंने अपने 2000 में मैंने MA में दाखिला ले लिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में, वो भी रेगुलर किया। वहाँ पे मेरे दोस्तों से रब्ता हुआ तो वहाँ पे BSc में एक प्रोग्राम चल रहा था ऑब्जेक्टिव टाइप सही। का, उसकी कोई बुक नहीं थी। फिर मैंने ये BSc लेवल की एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक लिखी। ये आप थोड़ा सा अगर मेरे कैमरा मैन दिखा दे आपको, तो ये नसीरुल्लाह तार साहब की बुक है। ये 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर लगा है, BSc लेवल। हाँ, BSc लेवल के ग्रेजुएशन के हवाले से, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बहुत अच्छी बुक है। और बड़ी बात है जी, अगर क्रिएटिव होना, हमारे कहा जाता है कि बंदा कौन सा बंदा लर्निंग तो करवाता, क्रिएटिव कितना है खुद कितना। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एज ए मास्टर ट्रेनर जब मैंने काम किया DT बन के, हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो थे ना, उन्होंने मुझे ये तहसील चिश्तिया का सबसे बेस्ट DT का ये अवार्ड दिया था। ये भी 2014 में। हमारे इस इलाके की मट्टी बड़ी जरखेज है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, उम्मीद है मेरा कैमरा मैन इसको दिखा देगा फोकस कर के, ये ठीक है जी। और ये बेस्ट अवार्ड है इनको। और किस लेवल का ये अवार्ड मिला सर? ये बेहतरीन मास्टर ट्रेनर। मास्टर ट्रेनर का, बड़ी बात है। और सिखाने वाले जो है ना, जो टीचरों को ट्रेनिंग देने वाले, उनका बेस्ट अवार्ड मिला है, तो ये बड़ी बात है। अच्छा, उससे आगे सर मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा आपको। फिर एक टाइम ऐसा आया कि गवर्नमेंट ने DET जो डिपार्टमेंट था इसको खत्म कर दिया, हालांकि ये मिस्टेक थी मेरे ख्याल में। अच्छा, हमें पता कि ये बाहर से फंड हाथ में आते हैं। हमारे बदकिस्मती ये एजुकेशन में एक प्रोग्राम शुरू होता है ना, जब उसके असरात अच्छे आना शुरू हो जाते हैं ना, बाहर से कुंडी हिलती है कि अब पीछे से उसको क्लोज करना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, इन्होंने एक बहाना बनाया था कि इसमें कुछ नाअहल बंदे आ गए। इनको चाहिए था, अगर मेरी उंगली पे जख्म है ना, उंगली नहीं काटनी चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। सही। अगर कोई बंदे ऐसे जो काम नहीं करते थे ऐसे आ गए थे, तो मेरा ख्याल है कि उनको चेंज कर लेना चाहिए था, मेरी अपनी राय है, या उनकी मजीद तरबियत करते। पर वहाँ बहुत बेहतर था वैसे, प्राइमरी लेवल पे बहुत, यानी कि फ्रूटफुल इसके रिजल्ट्स आए थे। सही सही। अच्छा, इसके बाद जब इसको खत्म कर दिया गया, इसका अल्टरनेटिव तो अब कोई नहीं है, मतलब इसका अल्टरनेटिव उन्होंने ये निकाला कि 10-10 स्कूलों पे एक AEO लगा दिया, लेकिन AEO का हमारे पास सजा की पावर नहीं थी। हम करते हैं मेंटोरिंग, किसी की रहनुमाई मेंटोरिंग वो ही कर सकता है जिसके पास पावर ना हो सजा की। समझा वो ही सकता है, जिसके पास सजा की पावर होती है वो समझा नहीं सकता, वो ऑर्डर करेगा। वो अथॉरिटी और चीज आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है। हाँ, AEO को उन्हें अथॉरिटी दे दी, काम उनका AEO से हम वो लेंगे, लेकिन वो AEO से काम नहीं ले सके, वो प्रोग्राम वाइंड अप हो गया। और वो रिजल्ट हुआ था, वो अथॉरिटी चल रही है लेकिन मेंटोरिंग नहीं चल रही। DTS के बाद मेंटोरिंग होती थी। आपके सर टाइम को ज़हन में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें पूछूंगा जो बहुत ज़रूरी हैं मेरे समझता हूँ। एजुकेशन का स्टैंडर्ड, खौफ, एक जज्बा, एक मुकाबलाबाजी हुआ करती थी स्कूलों में। जी जी। कब होती थी? जब 5वीं के 8वीं के एग्ज़ाम होते थे बोर्ड के, लोग बड़ी मेहनतें करते थे, मुझे पता है, ओवरटाइम पढ़ाते थे या क्या क्या काम करते थे। तो अब ये सिलसिला तो ख़त्म कर दिया गया है, तो अब आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे कि अब मेरी सोच के मुताबिक ना, बल्कि मेरी नहीं, आम जो टीचर है ना, मिशनरी टीचर, थोड़ा सा ऐड कर दूं एक लाइन कि प्राइमरी स्कूलों के वैल्यूएशन और मिडिल स्कूलों के वैल्यूएशन गवर्नमेंट इसके अलावा कैसे कर लेगी? उन्होंने जो तरीका रखा हुआ है ना, वो LND चल रही है, वो सिर्फ तीसरी क्लास की है,
ठीक है, सही। चेक एंड बैलेंस मिडिल हिस्से का बिल्कुल ही खत्म हो गया, सही बिल्कुल ही। यानी उसका नुकसान ये हुआ, टीचर इतना रिलैक्स हो गया, इतना रिलैक्स हो गया कि उसने कहा रिजल्ट तो आने नहीं है, रिजल्ट होता है ना जी। अब वो सारा जो बोझ है वो SSC पे पड़ गया 9th 10th में। 9th 10th में बच्चा वो आ रहा है जिसे लिखना भी नहीं आता, सही, उससे रिजल्ट मांगा जाता है। यानी ये पॉलिसी ने नुकसान दिया है। जो भी सिस्टम होना चाहिए था ना, फेल पास का 8th में होना चाहिए था, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था। सर अभी हालिया दिनों में पिछला अभी 1-2 माह पीछे को अगर जाएं तो रिजल्ट आया था मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का। वहाँ पे लोगों के मार्क्स जो हैं, जब हमारा दौर होता था, जब आप लोगों का दौर था, बड़े मतलब थोड़े नंबर होते थे लेकिन बंदे जीनियस होते थे। सही कह रहा हूँ। अगर अब देखा जाए तो कहते हैं कि 9% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों के पूरे में से फुल यानी 500/5 या 1100/1100 मार्क्स आ गए। आप क्या कहेंगे इस मामले में? पहली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रल सब्जेक्ट के पेपर लिए हैं। सही, साइंस सब्जेक्ट में कुछ 100% मार्क्स आ भी जाते हैं पॉसिबल, लेकिन जो उन्होंने फार्मूला लगाया उसमें मैंने वो देखा है कि हमारे अपने स्टूडेंट जो बिल्कुल ही निकम्मे थे उनके नंबर ज़्यादा आ गए। शायद बच्चे का एक पेपर कमज़ोर हुआ, उसका इफेक्ट ये हुआ कि उसके नंबर बहुत कम है, यानी वो इंसाफ नहीं हुआ। जो यहाँ पे सर एक चीज़ बनती है फैमिली की, घर वालों की तरफ से, पेरेंट्स को हम शामिल करते हैं अपनी बात में कि जब बच्चे के नंबर जो होते हैं ना बहुत अच्छे आ जाते हैं तो घर वालों का साथ ही माइंड थिंकिंग चेंज हो जाती है। जी चलो जी। अच्छा, मेरा पूछने का मतलब ये था कि अब जो स्टूडेंट के नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं जी, पेरेंट्स जो है मार्क्स तो देखकर फैसला करते हैं कि बच्चे को अब किस फील्ड में लेके जाएं। कैरियर काउंसलिंग पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल है। अब जो स्टूडेंट जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसमें वो जाना नहीं चाहता जी, या घर वाले उसको जाने नहीं देते, तो ये जो बहुत ज़्यादा हाईली या रॉन्गली या जो भी आप कह लें एक्सीडेंटली मार्क्स का आ जाना, हम कहते हैं उनको, हम ये नहीं कहते कि क्यों आए हैं, अल्लाह हर एक को दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे की कैरियर काउंसलिंग भी फिर नहीं होती, या अगर नेचुरल साइंस में बच्चा चला जाता है तो आप क्या कहेंगे कि फिर वो बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं हो जाती? बिल्कुल नाइंसाफी होती है। कैसे? जब देखिए एक्सीडेंटल तौर पर मार्क्स आ गए, अब बच्चे की लाइन और पसंद करता है बच्चा, पेरेंट्स के नंबर देख के कह रहे हैं नहीं आपको इधर जाना चाहिए, बच्चा उधर इंटरेस्टेड नहीं है। सही। जब बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है हम धक्के से उधर भेज रहे हैं, एक देख के भी नंबर इसके फलां सब्जेक्ट में अच्छे आ गए, यानी ये इस सिस्टम से नुकसान हुआ है बच्चों का। सही। एग्जाम कोरोना था ना, एग्जामिनेशन सिस्टम में वो गवर्नमेंट पॉलिसी हम कौन होते हैं तनकीद करने वाले, हमें तो फॉलो करना होता है ना गवर्नमेंट को हिसाब जी। लेकिन अगर एग्जाम हो भी जाते, एग्जाम में तो बच्चा वैसे 6 फुट पे बैठता है, सही, बोर्ड के रूल के मुताबिक हो भी जाते, पूरे एग्जाम हो जाते, आपके ज़हन के मुताबिक फिजिकल एग्जाम होना चाहिए और पूरे सब्जेक्टों का होना चाहिए सर। सही, हाँ, बेहतर रिजल्ट आना चाहिए सर। ऐसे स्टूडेंट जिनको हम कहते हैं कि मैट्रिक हो गया, नंबर भी अच्छे आ गए, या ये भी जो पेरेंट्स है, आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा फिक्रा बोला जाता है कि यार पढ़ लिख के कौन सा नौकरी मिल जाती है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या तालीम जो है जॉब के लिए? वैसे मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। मैं अक्सर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं ना, वो 9th से 10th से हटा लेते हैं बच्चे को, वर्कशॉप में डाल देते हैं, यार हम नौकरी तो मिलती है। मैंने यही समझाता हूँ मैं क्या कि ये जो है ना तालीम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, जो बंदा सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ता है, एजुकेशन में उठना बैठना मिलना बड़ा, मैं बच्चों को ये सिखाता हूँ कि बेटे जब हम टीचर क्लास में आता है ना, आप स्टैंड अप होते हैं, हम बड़े नहीं हो जाते स्टैंड अप के लिए, हम आपको बेसिकली वो एक्सरसाइज करवाते हैं कि घर में कोई भी बड़ा आ जाए, वालिदैन आ जाए, कोई बड़ा भाई आ जाए, उनके लिए खड़े हो जाया करो। हालांकि हदीस पाक है जो अपने महसूस करे कि मेरे लिए खड़ा हो तो वो जहन्नम में ठिकाना बना ले। एक तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप ये रज़ाई पहन के लिए खड़े हो रहे हैं। मेन मकसद ये होता है बच्चों को जो तालीम है ना, वो उसको जिंदगी अच्छी जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है। रोजगार तो रोज ही तो अल्लाह ताला ने देनी है, कोई वर्कशॉप में काम कर रहा है, दुकान चला रहा है, लेकिन तालीम जो है ना वो रिस्पेक्ट सिखाती है, अदब सिखाती है। अगर तालीम हो तो, अगर बंदे में एटिकेट नहीं है ना सर, उसके पास PhD की डिग्री भी है ना, तो उस पर एजुकेशन नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, डिग्री है एजुकेटेड नहीं है।
एजुकेशन आपको जब आपके उठने बैठने से बात करने से जो बंदा फील करे कि ये मुहज्जब है, वो एजुकेटेड है, बेशक उसके पास प्राइमरी का सर्टिफिकेट। यानी यहाँ पे इन दिस टाइम अगर थोड़ा सा शॉर्टली मैं और कुछ चीज़ें शॉर्ट करके पूछ रहा हूँ आपसे कि आज आपको पता है आज साल का आखिरी दिन है। जी जी। नो डाउट हमारे यहाँ इस्लामी महीने होते हैं, उसमें लोगों को पता होता है सब, लेकिन इतना नहीं जितना जब जो अंग्रेजी साल खत्म होता है, जो हमारा दिसंबर 31 लोग विश करते हैं अच्छे साल के लिए। अगर मैं थोड़ा सा आपको उससे पूछूं कि 2021 और इस साल को एक लाइन में इन शॉर्टली कुछ कहेंगे इस साल के हवाले से, ये कैसा रहा? ये तालीम के लिए बड़ा बुरा रहा, क्योंकि अदारे कोरोना की वजह से अदारे बंद रहे। ठीक है, हम बच्चों को वो नहीं सिखा सके जो सिखाना चाहिए था। हम एज ए टीचर मैं बात कर रहा हूँ, टाइम बड़ा काम मिला है, थ्योरी होती है टाइम एंड स्पेस। उसका माहौल ये बना कि बच्चे अब तक रिलैक्स है, अब तक हमारी कोशिश के बावजूद भी बच्चे सीरियस नहीं हुए। अच्छा, क्या लोग या उन मुबहम नहीं उनके नजरियात के पता नहीं एग्जाम होंगे नहीं होंगे, पढ़े ना पढ़े या क्या होगा, या सिलेक्टिव स्टडी होगी, अभी तक क्लियर नहीं है बच्चे, यानी लोग क्लियर नहीं है। पेरेंट्स अभी डाउट में हैं। सर आखिरी एक दो सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा मसला था कि हम सिंगल करिकुलम SNC शायद उसको कहते हैं, ये सिंगल नेशनल करिकुलम में हम एक लाइन में खड़े करने लगे हैं, एक ही साल में खड़े हुए सब महमूद वजाज ना कोई बंदा रहा। हाँ, तो ये ऐसी सोच थी और इसको प्राइमरी से पर इम्प्लीमेंट किया गया। आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तो ये फिर पता चला इसमें कोई प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक्स आई। सर मैं SNC जो ना ये सिंगल नेशनल करिकुलम उसका मास्टर ट्रेनर भी हूँ माशाल्लाह। मैंने मैथमेटिक्स की मास्टर ट्रेनिंग करवाई है तहसील फोटाबास में, सही एज ए मास्टर ट्रेनर। बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम था, मैं वैसे से अप्रिशिएट करता हूँ कि होना चाहिए। क्यों बच्चा ही मैं फलां स्कूल से पढ़ के वहाँ क्या पढ़ के, वहाँ तो ये किताबें नहीं पढ़ के है, वहाँ ये सिलेबस में मैं पूरे पाकिस्तान ये कदम उठाया गया था, पूरे पाकिस्तान में सिलेबस सेम हो, वो तो दूर की बात है, हम पंजाब में भी सेम नहीं कर सके। जो आया था ट्रेनिंग में यही सिखाया गया था कि प्राइवेट स्कूल हो गवर्नमेंट स्कूल हो तमाम एक ही सिलेबस पढ़ाएंगे, यानी कोर्स आउटलाइन आप कह रहे हैं। हाँ सिमिलर होगी। हाँ जी हिंदी। लेकिन उसमें पहली बात तो जो सिलेबस आया प्राइमरी लेवल तक आया, नेक्स्ट ईयर इनका प्रोग्राम था कि मिडिल लेवल पे आएगा, उससे नेक्स्ट ईयर ये हाई से में जाएगा। उनकी ट्रेनिंग भी ऐसे स्टेप वाइज होगी, लेकिन उसमें इतनी मिस्टेक थी कि कहीं कलमा भी गलत है, दूसरा कलमा भी गलत आया, यानी बहुत सी मिस्टेक थी। लेकिन चलो वो मिस्टेक तो दूर हो, उन्होंने मान लिया। उसके बाद कोशिश की गवर्नमेंट ने, लेकिन कहीं भी नहीं चल रहा। प्राइवेट स्कूल 2 दिन प्रेशर हुआ, आपको भी पता है, अभी माशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर से हैं, लेकिन नहीं अपने अपनी मर्जी का जो पब्लिशर्स हैं वो एक उनकी मोनोपोली है, अपना सिलेबस का चल रहा है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती, और अगर करवा ले ये बेहतरीन काम है। हाँ, ऑक्सफोर्ड ने ऐलान कर दिया था कि हम तो इसका बाइकआउट करते हैं, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरा चीज़ मैंने आपसे, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने जनाब पहले MSc स्टडीज तो पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, फिर मैंने MA एजुकेशन इस्लामी यूनिवर्सिटी रेगुलर किया, वो भी सेंट्रल प्रोग्राम चलता था। फिर मैंने MSc मैथमेटिक्स की। सही। अब मैं MPhil कर चुका हूँ 3 साल पहले। मैं इन सारी मैंने सर्वस अपनी तालीम जारी रखी है, माँ की गोद से लेकर कवर की लहर तक इल्म हासिल करो, ये बात सच कर रहे हैं। MPhil स्टैटिस्टिक्स हूँ जी। अच्छा जी। वैसे मैंने DHMS होम्योपैथी का 4 साल कोर्स वो भी किया हुआ है माशाल्लाह। इधर में। सर ये चीज़ें होती हैं ना, जब भी हम इस तरह के जो लोग जिनसे हमारे चैनल का मकसद यही है कि जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी से, ऐसे लोगों से जिन्होंने ज़िंदगी में वेल डन किया, जैसे अंग्रेज कहते हैं ना वेल डन किया, तो हम ट्राई करते हैं कि ऐसे लोगों से मिला जाए ताकि हमारी जो नई जनरेशन है वो ऐसे लोगों के तजर्बात से, उनकी क्वालिफिकेशन से, उनके एक्सपीरियंस से ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर हो, फील्ड में आए, उनको पता चले एजुकेशन क्या चीज़ होती है। तो आखिरी चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, आखिरी मेरा सवाल है कि 2022 to 22 ऐसे करें, ये साल कैसा होगा एजुकेशन के हवाले से?
توقعات تو یہ اچھی رکھنی چاہیے، اچھا ہو. لوگ SNC پر یہ سلسلہ کامیاب دیکھتے ہیں آپ اس میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. اچھا گورنمنٹ نے اب دوبارہ پھر منسٹر کے یعنی کہ انٹرویوز کے مطابق دوبارہ پہ کام شروع ہو گیا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ ایسا ہو. SNC ہونا چاہیے، سنگل نیشنل کریکولم ہونا چاہیے. ہم ایک قوم ہے، ہماری یونٹی قائم ہی ایسے رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا کہ اگر ہم ایک کریکولم میں جائیں جو ہماری اوپر آؤٹ لائن بنتی ہیں نا، ہمارے گولز ہیں، ایمز ہیں ہماری قوم کے، نظریہ پاکستان کے، ہم اس کے مطابق چلیں. ہر کوئی اپنا گورنمنٹ کب تک مطلب نیو سیشن شروع کروانے جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مئی اگست ہی چلے گا جیسے حال ہے. یعنی کیونکہ مئی میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے بورڈ نے میٹرک ایگزام لینے کا. صحیح. ہاں جی 10 مئی سے انہوں نے شروع کیا ایگزام. صحیح. اگر سمر ویکیشن آ جائیں گے امید ہے. باقی جو بھی پالیسی ہوگی ان کی فالو کریں گے. ہماری آڈینس کو GM انسپائر ٹی وی کے لوگوں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہمارے جو اسٹوڈنٹس دیکھنے والے ٹیچر لوگ جو جتنے پاکستان کے لوگ، پاکستان سے باہر جو انڈیا، دوسرا فرانس، UAE، بہت سارے ممالک میں ہمارے پروگرام دیکھے جاتے ہیں. میں ایز اے ٹیچر یہ کہوں گا کہ تعلیم حاصل کریں لیکن یہ سوچ کے نہ کریں کہ میں روزگار ضرورت ہے ہماری. صحیح. لیکن تعلیم کو تعلیم سمجھ کے حاصل کرنا چاہیے. اور ایک چیز دوسری چیز جو ختم ہوتے ہوئی جا رہی ہے ہماری قوم میں سے، چاہے اسٹوڈنٹ ہیں چاہے گھر کا حال ہے، باد بانصیب بے نصیب، اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے. ہمارے یہاں اخلاقیات کی بڑی کمی ہے. میں تمام ٹیچر سے بھی گزارش کروں گا کہ تو بکس تو ہم بچوں کو پڑھاتے ہی ہیں، اخلاقیات کی تعلیم کی طرف تھوڑا زور دینا چاہیے. بچوں میں اخلاقیات کی کمی آ رہی ہے. ایک دن میں ایک میسج بچے تک کنوے کرنا چاہیے کہ مطلب زندگی میں آپ نے یہ کام اچھا سیکھنا ہے، کرنا ہے، کر کے دکھانا ہے. آج آپ جیسے کچھ اسکولوں میں ایک میسیجنگ والی لائن ہوتی ہے، وہ لکھتے ہیں صبح کو کہ بیٹا آج جا کے اپنی والدہ کو، والدین کو یا اپنے بڑوں کو سلام کرنا ہے، آج فلاں کام کرنا ہے. تو اس سے جو پیرنٹس کے اندر، جو بچے کے اندر جو ایک گرومنگ، ہیبٹ گرومنگ ہوتی ہے. بچے کو بس اسی ایک پوائنٹ، ایک یقین کا ایجنڈے پہ لے آؤ کہ باد بانصیب بے نصیب. ٹیچر کی رسپیکٹ بھی کرے گا، معاشرے کی رسپیکٹ بھی کرے گا، پیرنٹس کی بھی کرے گا. اگر بچے کو یہ فلسفہ سمجھ آ گیا، اگر بچے کو یہ فلسفہ، اچھا اس میں ٹیچر اکیلا کوئی رول نہیں ادا کرتا تھا، پیرنٹس اور ٹیچر دونوں مل کے یہ بیلنس ہو، دونوں دو ہی سے جو دوسرے کوآرڈینیشن، ٹیچر اور پیرنٹس میں کوآرڈینیشن ہو اور پھر بچے کی بہترین تربیت ہو سکتی ہے. باقی رزق حلال کی میں کہتا ہوں کہ رزق حلال کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ حالات کو بھی ڈینٹ آتی ہے. شکریہ صاحب، نوازش سے آپ نے ٹائم دیا. آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے میرے